नमस्कार। चलिए आज एक कहानी की बात करते हैं। एक कहानी सुननी है ना, कहानी सुनना अच्छा लगता है, राइट। गुजरातीમાં કહું છું, એક સમુદ્ર કિનારે એક માછીમાર અને એનો પરિવાર સમુદ્ર કિનારે ઝૂંપડાઓમાં રહે. એનો નિત્યક્રમ છે માછીમારનો. રોજ સવારે પોતાની હોડી એ લઈ અને સમુદ્રમાં દૂર દૂર સુધી જાય માછલીઓ પકડવા. એ માટે સવારે માછીમારનો પરિવાર એટલે કે એની પત્ની અને એક 4-5 વર્ષનો દીકરો બંને સમુદ્ર કિનારે સાથે આવે. માછીમારની સ્ત્રી એની પાસે સુંડલાઓ, પેલી જાળ, દોરડાઓ એ બધું ઉપાડી અને બીજા જે સાધનો છે એ લઈ અને માછીમારને પેલું બાળક આ બધા સમુદ્ર કિનારે આવે. હોડીને કિનારેથી છોડી તૈયાર કરે અને મા દીકરો બંને પેલાને વિદાય આપે માછીમારને. એ દૂર દૂર સુધી હોડી દેખાતી બંધ થાય ન થાય ત્યાં સુધી કિનારે ઊભા રહે અને આવજો આવજો કરે નાનો દીકરો. હોડી દેખાતી બંધ થાય એટલે મા દીકરો ઘરે આવે. સાંજ પડે એટલે ફરી વાર સમુદ્ર કિનારે ઊભા રહી જાય. દૂરથી પોતાની હોડી, એની ઉપરનો ધ્વજ એ જોઈ છોકરો ઓળખી જાય, કૂદવા માટે એ આવી એમ કૂદે અને હોડી નજીક આવે, કિનારે આવે, લાંગરે અને એમાંથી પેલા માછલાઓ ભરી ભરી પેલી માછીમારની સ્ત્રી એ ટોપલામાં ભરી અને પોતાના ઘરે ઠલવે. માછીમાર પણ જાળ સંકેલે, દોરડાઓ ભેગા કરે, એને પેલો દીકરો મદદ પણ કરે. આમ પરિવાર પછી ઘરે આવે. આ એનો નિત્યક્રમ છે. રોજ સવારે અને સાંજે એક લેખક છે એ રોજ એ દરિયા કિનારે ચોપાટી ઉપર ફરવા માટે નીકળે. રોજ જુએ એટલે આંખથી પરિચિત એકબીજાને જુએ. છોકરો પણ નાનો એવો દીકરો 5-1 વર્ષનો એ પણ જુએ હશે. હવે એક દિવસ એવું બન્યું, સાંજનો સમય છે, મા દીકરો દરિયા કિનારે ઊભા છે. લેખક પણ ત્યાંથી પસાર થાય છે, જુએ છે અને દૂરથી પેલી હોડી પણ દેખાય છે, આવી રહી છે. પેલો દીકરો કુદાકુદ કરવા માંડ્યો. એ આવી હોડી, પોતાના પિતાજી હોડી લઈને આવી રહ્યા છે, પણ હજી તો બહુ દૂર છે. ત્યાં અચાનક સમુદ્રમાં તોફાન શરૂ થયું. હોડી જે કિનારા તરફ આવી રહી છે એ વમળોમાં કંઈક ફસાય, ઊંચા ઊંચા મોજાઓ વચ્ચે ફસાઈ ગઈ અને જોતામાં નજર સામે એ હોડી દરિયામાં ડૂબી ગઈ. મા દીકરો અહીંયા કિનારે છે, શું કરી શકે, લાચાર છે. ખૂબ રડ્યા મા દીકરો. આ દ્રશ્ય જોઈને ખૂબ રડેલા દરિયા કિનારે. લેખકે જોયું, લોકો પણ ભેગા થયા, પણ શું કરે? આ ઘટનાને થોડા વર્ષો પસાર થઈ ગયા. એક વહેલી સવારે એક યુવાન હોડી તૈયાર કરી રહ્યો છે. એક વૃદ્ધ સ્ત્રી એને મદદ કરી રહી છે અને પેલા લેખક એ પણ હવે વૃદ્ધ થઈ રહ્યા છે. એને જોયું, છોકરાને ઓળખી ગયા. છોકરો પણ એ લેખકને ઓળખી ગયો કે આ લેખક તો રોજ ત્યાંથી નીકળે છે. એણે કહ્યું કે મારી સાથે આવવું છે દરિયામાં ફરવા માટે. લેખક તો તૈયાર થઈ ગયા, બેઠા એની સાથે હોડીમાં. પેલો હોડીમાં બેસાડીને લઈ ગયો. રસ્તામાં લેખકે પૂછ્યું કે થોડા વર્ષો પહેલા તારા પિતાજીનું અવસાન થયેલું કે નહીં, હોડી ડૂબી ગયેલી? તો પેલા એ કહ્યું હા. એ લેખક વિચારવા પડી ગયા. પછી પૂછ્યું કે તારું બીજું કોઈ નથી, તારે દાદા કે કાકા કે કોઈ છે? તો કે ના, મારા દાદા તો મૃત્યુ પામ્યા છે. તો કે કઈ જગ્યાએ, ક્યારે? તો કે એમનું પણ અહીંયા સમુદ્રમાં ડૂબી જવાથી, હોડી ડૂબી જવાથી મૃત્યુ થયેલું. લેખકે પૂછ્યું તારે કાકા? તો કે એમનું પણ મૃત્યુ થઈ ગયું છે. મારા પરિવારમાં કાકા હવે નથી, એનું પણ સમુદ્રમાં ડૂબીને મૃત્યુ થઈ ગયું છે. લેખક થોડી વાર વિચાર કરી છોકરાને કહ્યું, તને એવું નથી લાગતું કે તારા દાદા છે, તારા પિતાજી છે, તારા કાકા છે, આ બધાના મૃત્યુ અહીંયા દરિયામાં સમુદ્રમાં ડૂબી જવાથી, હોડી ડૂબી જવાથી થયું છે? તને બીક નથી લાગતું? વળી પાછો તું આ ધંધો લઈને બેઠો છે.
થોડી વાર છોકરો તો કશું બોલ્યો નહીં. થોડી વાર વિચારીને બોલ્યો કે આમ તો તમારી ઉંમર ઘણી મોટી છે, છતાંય પૂછું છું, તમારા પિતાજી છે, હયાત છે? તો કે ના ના, એ તો વર્ષો પહેલા મૃત્યુ પામ્યા છે. તો કે હું જાણી શકું કઈ જગ્યાએ મૃત્યુ પામ્યા છે? તો કે બીમાર હતા અને હોસ્પિટલમાં પલંગ ઉપર મૃત્યુ પામ્યા છે. તો કે તમારા દાદા તો નહીં હોય, તમારા મોટા ભાઈ કે તમારા કાકા કે કોઈ છે? તો કે ના, એનું મૃત્યુ થયું છે. એટલે પૂછ્યું કે એમનું મૃત્યુ ક્યાં થયેલું તમારા મોટા ભાઈનું? તો કે એ ઘરે પલંગ પર. છોકરાએ બે જ પ્રશ્ન પૂછેલા અને બંનેનો જવાબ લેખકે આપ્યો. એટલે છોકરાએ કહ્યું કે હજી તમે પલંગ ઉપર સુવો છો? તો કે હા, મારા ઘરે પલંગ છે, એના ઉપર સુવો. તમને બીક નથી લાગતી કે તમારા પિતાજી, તમારા કાકા કે મોટા ભાઈ આ બધાના મૃત્યુ ત્યાં પલંગ ઉપર થયેલા છે, તમે હજી સુવો છો? ન સુવું જોઈએ, ત્યાં મૃત્યુ થઈ જાય છે. લેખક સમજી ગયા આ વાત. છોકરાએ આગળ વાત કરી કે આ દરિયો તો અમારો બાપ છે, અમારો તારણહાર છે, અમારી આજીવિકાનું સાધન છે. ક્યારેક ગુસ્સે ભરાય, ક્રોધે ભરાય, ભરખી જાય, ભોગ લે, દરિયો ભોગ ભાગે, એનો સમય થાય ત્યારે ભોગ લઈ લે છે. પણ એનાથી કઈ અમારો આ બાપ દાદાનો ધંધો કઈ છોડી દો તો હું માછીમારનો દીકરો શાનો દરિયાથી ડરું? આ દરિયાના ખોળે ઉછરી તો અમે મોટા થયા છે. આવા તો કેટલાય મોત અમે દરિયા કિનારે જ જોયેલા છે. અમારામાં કિનારે મૃત્યુ પામે ને એવા પુરુષો બહુ ઓછા હોય છે. મોટા ભાગના દરિયામાં જ હોવાય છે. અને દરિયો ખેડવાનું છોડી દે માછીમારનો દીકરો દરિયાથી ડરી જાય? ન બને. આવો હિંમતવાન છો. કોઈ કવિએ પણ લખ્યું છે, દરિયો હતો, હોડી હતી અને ખારવો હતો, એ સમયે હે ખુદા મારે તને પડકારવો હતો. तो यहाँ एक हम जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं, तूफानों की औ, ये काव्य भी ऐसा ही है, लड़ने की बात है, संघर्ष की बात है, कि तूफानों का सामना करने की बात है. हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम तूफानों से भाग जाते हैं. समय के साथ सभी अपना जीवन बदलते हैं, समय के साथ हम बदल जाते हैं, लेकिन समय को बदलता हुआ तू चला था. समय को बदलने की बात है, इससे लड़ने की बात है. परिस्थिति के अधीन नहीं होना, परिस्थिति को ही बदलने की बात है. तो यहां तूफानों की और उसका सामना करने की बात कर रहे हैं. ये कवि हमारे शिव मंगल सिंह सुमन, ये सुमन उनका उपनाम. तो ये कविता जो है शिव मंगल सिंह सुमन की, यहां सदा ये संघर्षमय रहकर ये लड़ाई लड़नी है, संघर्ष निरंतर करते रहने की बात करते हैं, कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है कि भाई हमें सदा संघर्ष में होकर लक्ष्य की ओर बढ़ना. जिस तरह ये आग में रहकर सोना निकलता है, उसी तरह जो ये बाधाएं हैं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादे हैं वे मजबूत बनाती हैं. तो इस कविता में धैर्य है, गतिशीलता है, साहस है और संघर्षरत रहने की बात है, जिससे मूल्य उजागर हुए. तो सोने की पहले बात करते हैं. सोना जो है ये आग में शुद्ध होता है, आग में जलकर वह शुद्ध हो जाता है. तो आग जरूरी है सोने को शुद्ध करने के लिए. तो जो ऐसी अग्नि परीक्षा देते हैं वह उसमें से खरे उतरते हैं, उसमें से जो बाहर निकलता है वह एकदम शुद्ध हो जाता. तो जीवन में हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए. जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष. हमें लड़ना पड़ता है. हाथी जवानों कायम तलवार ताणी ताणी, चीनू मोदी ने कहा गुजरात में. तो सतत हमें लड़ते रहना, हारना मना, थकना मना है, थकना नहीं, निरंतर संघर्ष.
तो यहाँ निरंतर संघर्ष की बात करते हुए कवि नाविक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाविक, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, निज पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। ये पतवार यानी तिकोना, एक तिकोना चप्पू जिसे बोलते हैं, लकड़ी, नाव चलाने की लकड़ी तिकोन आकार की होती। एक लकड़ी हो उसका छोर पर एक तिकोन आकार होता है। तो ये जो लकड़ी है उसके छोर पर ऐसे तिकोन आकार होता है। गुजराती में क्या बोलते हैं? हलेसु, नाव चलाने का साधन, उसे हिंदी में बोलते पतवार या चप्पू। तो ये पतवार है, ये तूफानों की ओर घुमाना। जिस तरफ से दरिया में जिस दिशा में से तूफान आ रहा उसकी ओर ये चप्पू, ये पतवार घुमाना। जिस दिशा में आपको नाव चलानी होती है ना, उस दिशा का ये पतवार या चप्पू चलाना पड़ता है। तो ये हमारी नाव है, उस दिशा में मुड़ जाएगी। ये जो पतवार है दूसरी, इसे स्थिर रखना है पकड़कर, ये घुमाना, तो उस दिशा में जाएगी। हमें उस दिशा में लेफ्ट साइड में जाना है, तो ये स्थिर रखकर ये चलाना है पतवार, तो उस दिशा में घूम जाएगी। तो तूफान जहां से आ रहा है उस दिशा में ये पतवार चलाओ, वहां घुमा दो तूफानों की ओर। जहां से समुद्र में से तूफान आ रहा वहीं जाना, उसका सामना करना, उसके सामने जाना, ये बात कर रहे हैं। भागने की बात नहीं कि ये वहां तूफान आ रहा, जल्दी चलाओ, तेज चलाओ, भागो। हमारे यहाँ तो हम ऐसे ही करते, बारिश हो रही, जल्दी तेज चलो, भागो, हम भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ये सारी बातें जो है ना, वह हमें सामना नहीं करने देती। कोई भी आफत आए उसका सामना करना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि भाई ये बारिश है, कुदरती है, होगी तो क्या, हमें तो उसका सामना करना है। बारिश में भीगकर भी हम रह सकते हैं। जैसे सरहद पर हमारे सैनिक माइनस में तापमान होता है, तब भी वहां रहते, सुरक्षा करते हमारे। तो तूफानों का तो सामना करना चाहिए। हमारे शरीर को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि कोई भी कुदरती आफत आए या मानव सर्जित आफत आए, हम उसका मुकाबला कर सके, उससे लड़ सके, भागने की बात नहीं। तो यहाँ ऐसी जोशपूर्ण बात है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, निज पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। आगे कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज सिंधु ने विष उगला है। ये जो सिंधु है, सिंधु यानी समुद्र, सिंधु, आज सिंधु ने विष उगला है। वैसे तो बहुत सारे समानार्थी शब्द है। उददी, इसे उददी भी कहते हैं। तो ये सिंधु ने विष उगला है। वैसे तो उगलता नहीं है, एक बार उगला था। तो ये विष उगला है। कब उगला था? एक बार समुद्र ने उगला था, विष निकला था। समुद्र मंथन के समय देवता और दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से विष का एक कुंभ निकला था। अमृत तो बाद में निकला, पहले विष निकला था। तो ये विष इतना कातिल विष था, उसे पृथ्वी पर डालेंगे तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। कहाँ रखे उसे? तो सब देवता और दानव महादेव के पास गए, क्योंकि दोनों उनके भक्त,
दानव भी उसे मानते हैं और सब जानते हैं भोला भगवान, उसका नाम है भोला। भोला उसे जाकर कहेंगे कि ये पी जाओ तो पी जाएगा, जो कुछ भी होगा उसका होगा, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये दोनों देवता और दानव दोनों मिलकर गए और कहा कि समुद्र मंथन हमने किया था, उसमें से जो प्रसादी मिली है आपके लिए भी ले आए, आप प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान शिव उसने देखा, समझ गए तो ये तो कातिल विष, इसे जमीन पर तो नहीं डाल सकते, क्या करें, उठाया पी गए। आज भी उसके प्रतीक के रूप में गले में सांप होता है। शिव जी नीलकंठ नाम हो गया क्योंकि गले में समा लिया उसने, नीचे नहीं जाने दिया पेट में, क्योंकि ये तो हलाहल विष पेट में भी नहीं जाने दिया और थूका भी नहीं, पृथ्वी पर भी नहीं डाला, गले में संग्रह किया, इसलिए उसका नाम हो गया नीलकंठ। उसका कंठ नीला हो गया जहर के कारण। तो ये विष उगला। एक बार समुद्र में समुद्र बंधन के समय ऐसा हुआ था। आज मानो फिर से इस सिंधु ने विष उगला, यानी अपने भीतर से विष उगल रहा, या जो भी है समुद्र में उसे निगल जाना चाहता, उसे मार देना चाहता हो। तो आज उसने विष उगला है और लहरों, समुद्र की लहरें एक के बाद एक लहर आती रहती। आज ये लहरें जो है उनका यौवन मचला है, समुद्र की लहरें उनका यौवन, उसकी युवान आज मचला है। आज थोड़ी मस्ती करते तूफानी बन गई ये लहर, आज उनका यौवन मचला है। आज हृदय और सिंधु दोनों में क्या है, आज हृदय में और सिंधु दोनों में उठा है ज्वार। मेरे हृदय में भी ज्वार उठा, ज्वार यानी तूफान। सिंधु में तो उठा ही, हम देख रहे हैं समुद्र तूफानी हो गया। आज मेरे हृदय में और ये सिंधु यानी समुद्र दोनों में एक साथ उठा है ज्वार, यानी वह तूफानी हुआ। तूफानों की ओर घुमाने की बात कर रहे, इसलिए कर रहे कि समुद्र तूफानी बन गया। तो आज मेरे हृदय में भी तूफान उठा है, वहां भी उठा है, यहां भी उठा है। मुझे भी उसका सामना करना है, लड़ना है। चलो, क्या कहते कवि, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो, वहां ले चलो मुझे जहां दूर से तूफान आ रहा है, उसका सामना करना है, उससे लड़ना है। वह जहर उगल रहा है, उसमें से तूफान उमड़ पड़ा है। आज वहां तूफान उठा है तो मेरे हृदय में भी तूफान उठा है, मैं उसका सामना करूंगा, लड़ूंगा, वहां ले चलो। तो ये बात, ये भावना है कवि के हृदय में कि मुझे इसका सामना करना है, भागना नहीं है। वहां तूफान आ रहा, जल्दी भागो, किनारे पर डूब जाएंगे, ये बात है। उसका सामना करने ले जाओ, वहां जाना चाहते हैं। तो ये स्पिरिट जो है कवि का, कि उनके साथ संघर्ष करना है, लड़ना। अब लहरों के स्वर में कुछ तो बोलो, जैसे लहर बोल रही, समुद्र की लहर एक के बाद एक आ रही है और गर्जनाएं करती रहती, आवाज आती है, तो उसी के स्वर में तुम भी कुछ बोलो, उसका जवाब दो। जैसे वो ऊंची आवाज में बात कर रही है समुद्र की लहरें, तो उससे जवाब दो, उसके स्वर में बोलो तुम भी, लहरों के स्वर में कुछ बोलो। इस अंधड़ के साहस, अंधड़ ने साहस को तोलो। ये अंधड़, अंधड़ या आंधी, ये आंधी, वैसे तो समुद्र के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। ये अंधड़ समुद्र, अंधड़ आंधी है, उसमें तूफान है। तो इस अंधड़ में तुम अपने साहस को तोलो, तोलो यानी तुलना करो। जैसे तोलते हैं, तराजू में तोलते हैं, एक तरफ वजन रखते भार और दूसरी तरफ चीज वस्तु रखते हैं और तराजू उठाकर तोलते हैं कि समान पलड़े हुए या नहीं। तो उसी तरह उनके सामने
ये आंधी के सामने अपने आप को तोलो। वह तूफानी है तो हम भी तूफानी उतने ही है जितना वह तूफानी। हम क्या डर जाएंगे उससे? हम भी उतने ही तूफानी हुए हैं। तो आज इस अंधड़ में साहस को तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में ये तूफानों का प्यार। इससे सामना करना, तूफानों का सामना करना, ये मौका, ये अवसर जीवन में कभी कभी ही प्राप्त होता है। रोज तो ऐसा तूफान उठता नहीं, रोज ऐसी आंधी आती नहीं। तो कभी कभी मिलता है हमें ऐसा मौका, ऐसा अवसर, तूफानों का ये प्यार, उससे मुकाबला करने का अवसर जीवन में कभी कभी ही प्राप्त होता है। ये तो कुदरती शक्ति है। आंधी या तूफान जो आता है वह तो कुदरती है, ये कोई मानव सर्जित नहीं है। तो ये कुदरती शक्ति, प्रचंड शक्ति उसमें होती है। मनुष्य तो उसके सामने पावर, शुद्र है। तो उसका सामना करने की बात है, कुदरती शक्तियों के सामने लड़ने की बात है। ये स्पिरिट होना चाहिए कि कुदरत के सामने भी हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उस पर भी जीत प्राप्त करेंगे। और मनुष्य ने प्राप्त की है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान से वह देवता बन सकता है। उतनी प्रचंड शक्ति उसमें भरी पड़ी हुई है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। ईश्वर ने हम पर इतनी कृपा की है कि हम धरती पर स्वर्ग बना सकते। ये वरदान मिला है मनुष्य को, तुम चाहो ना तो ये धरती को ही स्वर्ग बना सकते हो, भले ही इसका नाम मृत्यु लोक। और तुम जो चाहो तो तुम देवता बन सकते हो। उतनी शक्ति प्रदान की, लेकिन इस शक्ति का हमने दुरुपयोग किया। हम देवता नहीं दानव बन रहे, उस दिशा में जा रहे हैं। जिस दिशा में जाना था ना, उस दिशा में नहीं जा रहे। देवता बनने नहीं जा रहे, हम दानव बनने जा रहे हैं, राक्षस बनने जा रहे हैं। और ये पृथ्वी जिनको हमें स्वर्ग बनानी थी, धीरे धीरे हम नर्क बना रहे, रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो प्रचंड शक्ति तो है ही, लेकिन उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये कुदरती जो ताकतें हैं उससे लड़ने की बात है। और मनुष्य में इतनी शक्ति है, कुदरती आफतों पर भी धीरे धीरे मनुष्य विजय प्राप्त कर रहा है। कई कुदरती आफतें ऐसी थी जिन पर विजय प्राप्त कर ली और कई ऐसी कुदरती आफतें हैं जो आने वाली हैं, हमें पता चल जाता है, हम सावधान हो जाते हैं, हम अपनी सुरक्षा कर लेते हैं, पहले से सुरक्षित हो जाते हैं। तो मनुष्य हमेशा निरंतर कई सदियों से कुदरती आफत, कुदरती ताकत उनके सामने लड़ रहा है और लड़कर विजय भी प्राप्त कर रहा है। ऐसा नहीं केवल लड़ रहा है, लड़कर विजय भी प्राप्त की है। कई रोगों पर हमने विजय प्राप्त कर ली, कई कुदरती आफतों पर विजय प्राप्त कर ली। मनुष्य का जो आयुष्य जो है वह हमने बढ़ा दिया। कई रोगों पर उसकी दवाई खोज ली। धीरे धीरे मनुष्य जो कई बच्चे मर जाते जन्म के साथ, उसे हमने बचा लिया है। तो यहां कवि बात कर रहे हैं कुदरत पर विजय प्राप्त करने की। यहां कहते हैं कि ये असीम जो है निज सीमाएं जाने। देखिए समुद्र को कहते हैं ये असीम है। असीम तो बहुत सारी वस्तु है, लेकिन यहाँ असीम ये आकाश समुद्र के लिए प्रयोग किया गया, जिसकी कोई सीमा ना हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द है असीम। ये आकाश है, ये भी असीम है। समुद्र किनारे बैठकर पानी को देखेंगे ना तो भी वह असीम लगेगा, उसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देगी, इसका अंत कहां होगा। तो यह असीम है समुद्र, यह असीम निज सीमा जाने। निज यानी अपनी, वह अपनी सीमा जाने, अपनी मर्यादा जाने, अपनी मर्यादा में रहे। ये कहना चाहते हैं कि यह असीम जो है अपनी सीमा जाने कि तुम्हारी सीमा कहां तक, मर्यादा में रहना, यहां आगे नहीं बढ़ना। तो ये असीम अपनी सीमा, निज सीमा को जाने और ये सागर में
सागर भी तो ये पहचान, ये असीम सागर के लिए कहा गया। सागर भी तो ये पहचान है, क्या पहचान? सागर भी ये पहचान है, लेकिन क्या पहचानने की कोई बात कर रहे हैं? ये असीम, ये निज सीमा जाने। कौन सी सीमा जाने? कि मर्यादा में रहना, अपनी सीमा में रहना, अपनी हद में रहना। और ये सागर भी पहचाने, क्या पहचाने? कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो। मिट्टी के पुतले, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा। मिट्टी का पुतला यानी मिट्टी से बना हमारा देह, हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है। अद्भुत लगेगा हमें कि ये मिट्टी से तो नहीं बना है, ये तो चमड़ी है, हड्डियां है, ये सब कुछ मिट्टी से बना हुआ है। इसमें रॉ मटेरियल है, मिट्टी का उपयोग किया गया है। मिट्टी में से पोषण प्राप्त करते करते हमारा शरीर बना। कैसे बना? मिट्टी में से जो निकलने वाली घास, मिट्टी में से पोषण पाने वाले हमारे अनाज, हमारे फल, ये मिट्टी में से पोषण प्राप्त करते। हमारी सब्जियां ये मिट्टी में पोषण प्राप्त करती, मिट्टी में से। तो ये मिट्टी के जो भी गुण है मिट्टी के, वह सब हमारे फलों में, हमारी सब्जियों में, हमारे दूध में, हमारे अनाज में, हमारी खुराक में आते। और ये गुण, मिट्टी के गुण लेकर हमारे शरीर की वृद्धि और विकास होता है। तो हमारा शरीर प्रत्यक्ष मिट्टी तो नहीं खाता, लेकिन परोक्ष रूप से मिट्टी से पोषण प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा गया। दूसरी बात कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब फिर मिट्टी में मिल जाता है। पहले मिट्टी में से बनता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है, उसे दफनाए या अग्नि संस्कार दे, लेकिन उसकी खाक मिट्टी में मिल जाती है, ये देह मिट्टी में मिल जाती है। तो ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ये मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। ये सागर जाने, क्या जाने? ये सागर भी तो ये पहचाने कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो निज पतवार, नाविक तूफानों की ओर घुमा दो। तो ये सागर को ललकारा है, चुनौती दी है कि तू भी जाने। हमने भी कभी हार नहीं मानी, और मनुष्य ने कभी हार मानी नहीं है। एवरेस्ट पर पहुंचा है मनुष्य, सातों सागर पार गया है मनुष्य, दुर्गम जगह पर गया है। तो मिट्टी के मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो। अब आगे कवि कहते हैं कि ये सागर की अपनी एक क्षमता है, पर माझी कब थकता है। सागर जो है, समुद्र है, उसकी एक क्षमता है, ताकत, लेकिन ये माझी है। सागर में घूमने वाला ये माझी या नाविक, मल्लाह, नाव चलाने वाला नाविक, या खिवैया, नाव खेने वाला, इसे खिवैया भी बोलते हैं। तो ये मल्लाह, माझी या नाविक, वह भी कब थकता है, उसकी क्षमता है सागर की। लेकिन ये नाविक भी कब थकता है? वह थकता नहीं है। माझी भी कब थकता है? जब तक सांसों में स्पंदन है और उसका हाथ नहीं रुकता है। सांसें चल रही, सांसों में स्पंदन है। जब तक सांसें हैं, चलती रहती हैं, तब तक ये हाथ रुकने वाला नहीं है, ये तो पतवार चलाता रहेगा। तो जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है, और इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। ये बल पर जब तक सांस, तब तक नाव चलाता रहेगा, थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। राही बढ़े चलो निज पथ पर, यदि चलते चलते गिर जाओ, पैरों में कांटे चुभ जाए, फिर भी चलना काम तुम्हारा।
राही बढ़े चलो निज पथ पर। ये आगे बढ़ने की बात है। हरिवंश राय बच्चन ने भी कहा है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कोशिश तो करनी चाहिए, चलते रहना चाहिए, हार नहीं माननी है। हमें निरंतर संघर्ष करते रहना, आगे बढ़ते ही रहना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, लड़ना है। कुदरती शक्ति है तो उसके सामने भी लड़ना है। एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे दुनिया में कई लोग निकले थे, कोलंबस जो हिंदुस्तान आने के लिए निकला था, अमेरिका पहुंच गया था, वास्को द गामा, उसने भारत के नए समुद्र रास्ते की खोज की, नया समुद्री रास्ता खोज डाला। उसने देखा ही नहीं था, जीपीएस सिस्टम नहीं थी उसके पास, नक्शे नहीं थे, ये वायरलेस रेडियो सिस्टम कुछ नहीं था। उन दिनों में उन्होंने जो साहस किया, उसके बाद काफी समृद्धि यूरोपीय देशों को मिली। तो साहस करने वालों को सफलता मिलती है। आने वाली पीढ़ियां उसे याद करती है कि इनके कारण आज हम समृद्ध हैं। कोलंबस है या वास्को द गामा, उनके अनुगामी है, वे समृद्ध बने। साहस उन्होंने किया, तो मनुष्य को साहस तो करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें कोई मिसाल देने के लिए भी हमें साहस करने चाहिए, तो ही आने वाली पीढ़ियां सुखी होगी, समृद्ध होगी, साहसिक होगी। तो ये प्रेरणा देते हैं कवि कि भाई हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। चलिए, तो इस काव्य के प्रश्न देख लीजिए। ये अभ्यास में एक प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको फेसबुक पे करना है, क्वेश्चन नंबर 3। और ये देखिए यहां स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में प्रश्न दिए हैं। तो प्रश्न 1 है, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको फेसबुक में लिखने, बस उतना ही फेसबुक का वर्क है। बाकी सब लेखन कार्य या व्याकरण के प्रश्न हैं जो अलग से करते हैं, इसमें नहीं करना है। ये 2 ही प्रश्न आपको फेसबुक पे लिखने। तो ये सेम 2 में जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो ग्रामर है, ज्यादातर ग्रामर है सेम 1 में जो सिलेबस था उसमें पढ़ चुके हैं, वही ग्रामर हमें सेम 2 के लिए भी रिपीट करना। तो बाकी जो प्रश्न आते हैं, खास करके समानार्थी है, विरुद्धार्थी शब्द है, या शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न, ये तो साथ साथ बोर्ड पर भी करते जाते हैं, उसके लिए कोई नया चैप्टर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेखन कार्य के लिए सिर्फ 1 और सिर्फ 2 ये कॉमन रखना, उसमें भी हम करेंगे, लेखन कार्य भी करेंगे, सिर्फ 2 में भी करेंगे। चलिए, तो क्लियर, ये लेसन यहाँ समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नई बहुत अच्छी कहानी के साथ। नमस्कार।